तो कल तक के वीडियो में हमने इस बात को देख लिया था कि ये बात कैसे प्रूव हुई कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन्स। और इसे प्रूव करने के लिए एक्चुअली हमने 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पढ़े। फर्स्ट experiment was Griffith transformation experiment, which was done by Griffith probably in 1928. Then the other experiment came around in 1944, and the other one followed in 1952 by Martha and Chase. Any problem? So ultimate, the last experiment, which was done with the help of bacteriophage by Hersey and Chase, which was done by Alfred Hersey and Martha Chase in 1952, gave an unequivocal proof that only DNA is the genetic material, not the proteins. So if someone asks you why DNA is the genetic material, not the proteins, what is that special characteristics which is only possessed by DNA, and this characteristics no more possessed by proteins anyhow. So you can easily say that proteins, as we have already observed over there, proteins do not get transferred. Proteins don't get transferred from one generation to the another generation, and hereditary material or genetic material should be of that type which can at least get transferred from one generation to another generation. All right, so protein do not qualify the criteria of being a genetic material. However, the other most important criteria is also that proteins do not replicate. All right, proteins don't replicate. Therefore, if it does not replicate, then it will not have the quality to form its copies. And if it will not form its copies, then it cannot transfer its copy to some other organism or to the further generation. Therefore, protein again is mm, disqualified for or disqualified in the race of genetic material. All right, therefore only DNA being possessing all these both important characteristics, therefore DNA has been considered as the genetic material unequivocally. And after the experiment of that Hersey and Chase, it became quite clear and evident. All right, what we have already seen, and I have been reiterating from the first lecture, that DNA is the predominant genetic material. That is, DNA is found in most of the organism. However, RNA is found only in some viruses like tobacco mosaic virus, like retrovirus, like viruses of HIV family, retrovirus, retroviridae family. Okay, so DNA is mainly the predominant genetic material, that is, in most of the plants and animal DNA is present. However, in some plants and animal RNA is also present. All right, some viruses have RNA as genetic material, some viruses have RNA as genetic material. Already I have told you. And what are the name of those viruses? TMB, tobacco mosaic virus, QB bacteriophage. I'm not talking of Cyan 174 bacteriophage because it is having DNA. All right, but QB bacteriophage have RNA as genetic material. You must remember these points because these are constantly and repeatedly asked in your NEET competitive exam. All right, so these two viruses are having RNA as genetic material, and these two viruses must be remembered by their name. They are very, very, very important. Proceeding ahead, let's see what do you mean by mutation. You will study in chapter evolution. All right, that what is mutation? Mutation is nothing but the change in gene sequence. Now, what is gene sequence? Gene sequence is nothing but the arrangement of base pair in a proper order. All right. Now, what is the significance of its arrangement in proper order? The main significance of its arrangement in a proper sequence of order is that when it will not be in proper sequence or order, then it cannot code for a certain enzyme or protein, and that is ultimate our desired product. All right, so if there will be, or if there is a change, or if there is a change which get inherited, and anyhow the gene sequence get disturbed, then the protein which we were usually thinking, or which we were usually hoping to get from there, will not get it. All right,
So this phenomena of change in gene sequence is known as actually mutation. Alright. The phenomena of change in gene sequence is known as mutation. So RNA shows faster mutation due to being more reactive and unstable. Thus RNA viruses mutate means they actually have a faster change in gene sequence and they evolve faster. If that mutation is of particular type which one is selected in some particular environment, they will evolve. And if that evolution is progressive, then they will get selected by the nature and their number will consequently increase. This all discussion will be dealing in chapter evolution with ease. All right, and now let's proceed. I've just written over there for information that why RNA shows faster mutation. Faster mutation means change in DNA sequence. Means easily you can change the DNA sequence of RNA. Alright, why you can easily change it? Because RNA is unstable, more reactive. Why it's more reactive, we'll be dealing ahead. Alright, I have taken the point. You must read the note once. However, we will be dealing this point in detail in evolution chapter. Alright. Now, one may ask you after reading the chapter for more than 10 pages from NCERT that why DNA is more stable than RNA. I have given you the answer of this question multiple times, but still I want you to give it again. That why DNA is more stable than RNA. You know that in DNA, most DNAs are actually double-stranded structure. RNA is a single-stranded structure. Therefore, when DNA is a double-stranded structure, then how double-stranded structures are found? When one strand, that is when one nucleotide strands bind with the other nucleotide strand through hydrogen bond, then double-stranded structure is found, and that hydrogen bond provides stability to the structure of that particular genetic material. So that stability is only present mostly in cases of DNA, because we have mostly observed in our nature, we have mostly observed that DNA is double-stranded. However, RNA is mostly, in most of the cases, RNA is single-stranded. However, there are some exceptions, but mostly DNA are double-stranded. That's why I have also written that DNA mostly are double-stranded. Thus, due to hydrogen bond, stability increases. That's reactivity decreases. All right, and RNA is less stable, more reactive. Why? Because the nitrogen, as it is single-stranded, RNA is mostly single-stranded. Therefore, the nitrogen bases like A, U, G, C, A, this all nitrogen bases are exposed. This all nitrogen bases are exposed. They're not bonded through hydrogen. They are not bonded through hydrogen. They are actually exposed. So any reactant or any reacting molecule can come over there and can react easily. Thus the reactivity of RNA increases. All right, because something, when something is free, then it is always more reactive. Getting me? So I have written the same what I've said now, that less stable, more reactive, as nitrogen bases are not paired. Here nitrogen bases are not paired. It's as the strand is single. Alright. Nitrogen bases are not paired and they are open, and not why? Because they are not having any hydrogen bond. Alright. Now again, this fact I have already explained you multiple times. So let me read it again. At second carbon of its sugar, that is in DNA, deoxyribose sugar is present, that in second carbon OH group is absent, and OH group is a functional group, therefore it's a reactive group. Therefore OH group is absent. So if functional group is absent, then reactivity will itself decrease. And in case of RNA, in second carbon OH group is present, thus it is reactive and less stable. I have explained it multiple times. In DNA, thymine is present. Here uracil is present. Thymine has extra and CH3 on fifth position. Therefore again stability increases, because methylation of any compound increases its stability. All right, now I have explained you this point, that in DNA slower mutation is found and here faster mutation is found. Why faster mutation is found in RNA? What is mutation? Mutation is nothing but change in DNA sequence or gene sequence. No, how can you easily change someone's DNA sequence? Yeah, easily you can change the gene or DNA sequence when it is easily exposed. Take for an example. Take for an example. This is your strand of RNA. Here it is G,
A U C A C. Right. So if this is exposed, if this is exposed means then any molecule can come, or any mutagens means mutation causing agent can easily come over there, and it can remove this base pair. Or it can be chemical, it can be radiation, or it can be anything, and it can remove this base pair, and then now you will read the whole DNA sequence as G U C A C. ऑलराइट, मीन्स पहले जो GAUCAC था अब वो GUCAC हो गया। समझ रहे बात को? अब मान लो कि ये तीनों बेस पेयर मिलकर यदि किसी प्रोटीन को कोड कर रहा होगा, किसी प्रोटीन को कोड कर रहा होगा, ये तीनों किसी प्रोटीन को कोड कर रहा होगा, तो नीचे वाले केस में क्या होगा? नीचे वाले केस में ये GUC तो अब दूसरे प्रोटीन को कोड करेगा, क्योंकि GAU जिस प्रोटीन को कोड करेगा वो उसका कोडिंग अब तो सेम रहा नहीं, क्योंकि हमेशा आप आगे पढ़ोगे कि कोडोन ट्रिपलेट में होने चाहिए। तो GUC अब किसी और प्रोटीन को कोड करेगा, और AC तो कोड ही नहीं करेगा, प्रोटीन बनाएगा ही नहीं। तो ऊपर में जो प्रोटीन बन रहा था, ऊपर में जो फिजियोलॉजी बन रही थी, वो नीचे में फिजियोलॉजी नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन के कारण ये बेस पेयर जो एक्सपोज्ड था वो किसी केमिकल, किसी रेडिएशन के कारण ईजिली हटा दिया गया, तोड़ दिया गया, रिमूव कर दिया गया। आ गई बात समझ में? इसलिए आरएनए में म्यूटेशन जल्दी होता है। लेकिन डीएनए का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, डीएनए का स्ट्रक्चर में, but when you talk of DNA as DNA is a double-stranded structure, therefore the reactivity, or therefore the exposed portion of DNA, so that reactant can easily come and react with it and remove the base pair, the scope is very less। मतलब कि easily DNA पे अटैक करके उसके बेस पेयर्स को नहीं हटा पाएगा, और उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए डीएनए में म्यूटेशन थोड़ा क्या होगा? डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा थोड़ा सा स्लो। ऑलराइट, डीएनए में म्यूटेशन होगा थोड़ा स्लो, लेकिन इसमें आरएनए के केस में म्यूटेशन होगा फास्ट। बस ये समझने के लिए था आखिर क्या है म्यूटेशन, और इसके बारे में बाकी पूरी चीज़ों को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से। ऑलराइट, तो आपने पढ़ा और आपको पता चल गया होगा कि वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। इसका रीज़न क्या क्या है? 4 रीज़न मैंने आपको बताया। डीएनए मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। और आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये ओपन होता है, एक्सपोज्ड होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, इसलिए उतना ज़्यादा स्टेबल ये होता नहीं। दूसरा जो इसका पॉइंट है कि सेकंड कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है। OH एक फंक्शनल ग्रुप है, रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा इन केस ऑफ आरएनए। लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप क्या होता है? यहाँ पे OH ग्रुप एब्सेंट होता है। यहाँ पे थाइमिन होता है, यहाँ यूरेसिल होता है। स्लोअर म्यूटेशन, फास्टर म्यूटेशन, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, आगे बढ़ें। एक पॉइंट बस मैंने लिखा है, वो पढ़ लो आप। आरएनए इज एबल टू एक्सप्रेस डायरेक्टली वेयरएज डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर इट्स एक्सप्रेशन। ये जब अब मैं आपको सेंट्रल डोगमा पढ़ाऊंगा बस अगले ही पेज पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट को बस मैंने लिख दिया है, आप इसे नोट कर लो, आपको तुरंत अभी 2 मिनट के अंदर समझा देता हूँ। वेट, देखिए पहले तो कि आप एक चीज़ मेरे को जो मैं बता रहा हूँ वो गौर करो। ये डीएनए है, ये आरएनए है, और ये प्रोटीन है। मतलब कि डीएनए से ही क्या बना? आरएनए बना। आरएनए से ही क्या बना? प्रोटीन बना। डीएनए से ही आरएनए बना, आरएनए से ही प्रोटीन बना। तो डीएनए से आरएनए के बनने को प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन के बनने को प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, ये आप याद कर लो। और इस प्रकार से जो हमारे बॉडी में, या फिर हमारे जो फिजियोलॉजी है, या फिर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है, इसी प्रकार से फ्लो करता है। क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल है कौन? मेन जेनेटिक मटेरियल तो हमारा डीएनए है। विच इज आवर मेन जेनेटिक मटेरियल? हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए है। ये डीएनए से क्या बना? आरएनए। मतलब कि इन्फॉर्मेशन डीएनए से बनाया क्या? आरएनए बनाया। और आरएनए ही प्रोटीन बना सकता है, आरएनए से प्रोटीन बना। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन एक चीज़ और, ये डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन तो बनेगा, लेकिन जब एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होता है तो आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेट करती है। और डीएनए रेप्लिकेट कौन से फेज में करती है? डीएनए रेप्लिकेट इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल।
तो व्हाट हैपन्स इन रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में उसी डीएनए की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनती है। तो वो एक्स्ट्रा कॉपी डीएनए का बनना मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ डीएनए, ये जो देख रहे हो मतलब डीएनए से डीएनए का ही बनना क्या कहलाता है, आ गई समझ में बात। डीएनए से डीएनए का ही बनना कहलाता है आपका रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं उसे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन्स का बनना और डीएनए से डीएनए का बनना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। ऑलराइट, और इट वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक। वो वाटसन और क्रिक थे ना, तो उसमें जो क्रिक थे ही प्रपोज्ड दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज लाइक दिस इन ह्यूमंस और इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिसके अभी अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ऑलराइट, सेंट्रल डॉगमा क्या बताता है, सेंट्रल डॉगमा कुछ नहीं बताता है, इट जस्ट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक फ्लो, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करता है उसके बारे में ये हमें नॉलेज देता है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है मैंने, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इवॉल्व्ड अराउंड द आरएनए, दस आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब एक चीज मेरे को आप बताना यहाँ पर, बस बताना आप मेरे को, एक बार मैं वापस थोड़ा बैक कर दूँ इन चीज़ों को। आओ देखो आप, एक्सक्यूज मी, देखो आरएनए से प्रोटीन डायरेक्ट बन रहा है, मीन्स आरएनए यदि आपके पास जेनेटिक मटेरियल ग्रुप में था, प्रोटीन वन स्टेप प्रोसेस है। लेकिन यदि आपके पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में है तो उससे पहले आपको आरएनए बनाना पड़ेगा, फिर आपको प्रोटीन बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो मशीनरी है वो एक्चुअली में कितने दूर में लिमिटेड है। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी तो यहीं पे है ना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो मशीनरी है ये हो ना हो आरएनए के इर्द गिर्द ही इवॉल्व हुई है। मतलब कि जब दुनिया में इवोल्यूशन हो रहा था, जब दुनिया में चीज़ें बदल रही थी, इवॉल्व कर रही थी, मतलब एक जगह से दूसरे चीज़ें में मॉडिफाई हो रही थी, सिंपलर चीज़ें कॉम्प्लेक्स चीज़ों में मॉडिफाई हो रही थी, वही तो इवोल्यूशन होता है। अगर आपने इवोल्यूशन नहीं पढ़ा है तो इवोल्यूशन होता क्या, व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज नथिंग बट इट इज a sequential and orderly change from one condition to another। मतलब कि सिंपलर से कॉम्प्लेक्स में टूवर्ड्स, इस क्यों चेंज होता है उसमें, वाई डज एक्चुअली चेंजेस अकर जस्ट इन ऑर्डर टू बी इन अकॉर्डेंस विद द इन्वायरमेंट। नेचुरल फैक्टर्स के साथ साथ चेंजेस का होना जरूरी है, क्योंकि यदि वेरिएशंस नहीं आएंगे तो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में नहीं रह पाएगा, कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा और वो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आज आपकी धरती पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाए एकाएक, टेक फॉर एन एग्जाम्पल, हालांकि ऐसा होगा नहीं लेकिन हो जाए, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? मतलब कि क्या ह्यूमन जिंदा रह पाएगा धरती पर यदि ह्यूमन के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस झेलने की क्षमता नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं रह पाएगा जिंदा। कैसे रह पाएगा भाई? अगर 100 डिग्री सेल्सियस हमारे में झेलने की क्षमता है ही नहीं, देन कैन वी एक्चुअली सर्वाइव? वी कैन नॉट सर्वाइव। सो ऐसा ना हो, इसीलिए प्रकृति में दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से नेचर बदल रहा होता है, जिस प्रकार से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बदल रहे होते हैं, उसी प्रकार से ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अकॉर्डिंगली चेंजेस आते रहते हैं, ताकि ऑर्गेनिज्म जो है उस इन्वायरमेंट के साथ होम्योस्टैटिस में रहे, कंडीशंस जो उसके इंटरनल है उसको बैलेंस करके रख पाए और इस धरती पे अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चला सके। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। मतलब कि सीक्वेंशियल और ऑर्डरली चेंज एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में होना, दैट इज नोन एज इवोल्यूशन। तो आरएनए जब देख रहे हो कि आप आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन रहा है, तो इससे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि आरएनए बनाने वाली जो ये आरएनए से प्रोटीन बनाने वाली जो मशीनरी है ना, ये प्रोटीन बनाने वाली जो मशीनरी है, ये कहीं ना कहीं आरएनए के इर्द गिर्द भी इवॉल्व हुई है, आरएनए के इर्द गिर्द ही इवॉल्व हुई है। इसीलिए आरएनए डायरेक्टली कोड कर सकता है प्रोटीन के लिए, और डीएनए को कोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डीएनए को, इसी चीज को कोड करने के लिए पहले डीएनए को आरएनए बनाना पड़ेगा। क्योंकि पहले, और एक चीज यहां से और भी प्रूफ होता है कि पहले इसका मतलब है कि आरएनए ही आया होगा, क्योंकि अल्टीमेट प्रोडक्ट तो अपना प्रोटीन है। अरे भाई, अब अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है? हमें क्या चाहिए लास्ट में?
वी आर एक्चुअली कंसर्न विद प्रोटीन्स और एंजाइम्स, क्योंकि वही तो हमारा मेटाबॉलिक पाथवे को चलाएंगे। तो यदि हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स किससे बनता है? आरएनए से। ऑलराइट, और डीएनए आरएनए से कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी कब आती है? इवोल्यूशन के दौरान आती है। मतलब कि ये भी बात प्रूफ होता है कि आरएनए पहले आया और डीएनए बाद में आया, और आरएनए से प्रोटीन पहले भी बन रहा था, लेकिन आरएनए स्टेबल नहीं था। आरएनए स्टेबल नहीं था मतलब कि आरएनए रिएक्टिव था। आरएनए मैसेजेस को, इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकता था। उसमें चेंजेस, उसमें म्यूटेशंस ईजिली हो पा रहे थे। इसीलिए प्रकृति ने अपने आप को क्या किया, आरएनए के अंदर क्या हुआ, ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो और भी फैक्टर्स थे जिसके कारण आरएनए मॉडिफाई हुआ, और आरएनए मॉडिफाई होकर बन गया क्या, आरएनए गॉट मॉडिफाइड इनटू डीएनए। एंड व्हेन आरएनए गॉट मॉडिफाइड इनटू डीएनए, तो डीएनए में क्या क्या हो गया, आरएनए में जो OH ग्रुप था वो हट गया, इसमें डीएनए में बेस पेयरिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रह गए, थाइमिन आ गया यूरेसिल की जगह, जो कि इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे दिया। तो लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्ट तो अभी भी हमको क्या चाहिए, प्रोटीन ही चाहिए, एंजाइम ही चाहिए। तो अल्टीमेटली हमें क्या बनाना पड़ेगा, डीएनए को भी अल्टीमेटली फिर आरएनए की एक कॉपी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन तो आरएनए ही बनाएगा। इसीलिए ये लाइन ऊपर में लिख रखा है कि दिस प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, इसलिए एंड आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और इसके आगे आप एक लाइन खुद से भी जोड़ सकते हो कि बट डीएनए व्हेन नीड टू मेक प्रोटीन, क्योंकि हर जेनेटिक मटेरियल का अल्टीमेट नीड प्रोटीन बनाना ही है। हर अल्टीमेट नीड क्या है, प्रोटीन बनाना ही है। देयरफॉर कोई भी यदि डीएनए है तो उसको आरएनए पहले बनाना होगा, तभी वो प्रोटीन बना पाएगा। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और डीएनए की एक कॉपी मतलब कि डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज नोन एज रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, इट इज रेप्लिकेशन। ऑल राइट, ये चीज़ें आप देख लेना एक बार, एनसीईआरटी पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और इस पूरे जो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है, ये जो पूरा चार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा दिया था कौन से साइंटिस्ट ने, क्रिक ने। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, इट इज फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। देखिए अब आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया ना, वही आरएनए वर्ल्ड है। देखिए लोगों ने पूछा कि ठीक है, मान लिया कि मैंने डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है? इस दुनिया जब बनी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जब दुनिया में प्रजाति, जब दुनिया में जीव बन रहे थे, तो विच वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था? तो इसका आंसर जाएगा आरएनए। आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल इसलिए था क्योंकि मैंने अभी अभी आपको समझाया कि पहली बात तो क्या थी, आरएनए जो है वो क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू डीएनए। और इवोल्यूशन हमेशा कैसा होता है, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। इसलिए यदि डीएनए कॉम्प्लेक्स है तो हो जरूर है कि आरएनए उससे पहले आया होगा, क्योंकि आरएनए सिंपलर स्ट्रक्चर्स है। ये बात समझ में, ये बातें आपको डिटेल में और इवोल्यूशन में समझ में आएगी। और मैं इवोल्यूशन में आपको जब बढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा भी, क्योंकि ये चीज़ें इवोल्यूशन में ही मेनली समझ में आती है, ठीक है। तो एक चीज़ आप बस मान लो कि पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था, इसलिए क्योंकि आरएनए जो अकेला जेनेटिक मटेरियल था, वो आरएनए, मैंने आपको शुरू में ही बात बताई थी कि आरएनए जो है सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का रोल ही नहीं प्ले कर सकता है, बल्कि आरएनए का कैटालिटिक रोल भी होता है, मतलब कि आरएनए एंजाइम वाला भी रोल प्ले कर सकता है। अब मान लो आरएनए से प्रोटीन बनाना है, तो मैंने तो एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में आपको ऊपर में दिखा दिया, जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है मैंने दिखा दिया, आरएनए से ये प्रोटीन बन गया, ये आरएनए से प्रोटीन बन गया। लेकिन इतना आसान होता है क्या? नहीं होता कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे इतना आसान। उसमें मल्टीपल एंजाइम्स लगते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस लगते हैं। और जब आप ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ मेनी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, हाउ कॉम्प्लेक्स द प्रोसेस इज। और हम लोग तो बस उस चीज़ को डिकोड कर पाए जितना हमें समझ में आया है, लेकिन एक्चुअली में वो प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली में वो कितना स्टेप का प्रोसेस है, उसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए और कभी भी नहीं कर पाएंगे। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी कैन डू इट, वी कैन राइट इट ऑन पेन एंड पेपर, लेकिन एक्चुअली में बॉडी में क्या प्रोसेस चलती है, कैसे क्या चीज़ें होती है, वो एक्चुअली में उस जो मेन मतलब की चीज़ है ना, वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी हमें, क्योंकि एक साथ में मल्टीपल प्रोसेस चल रहे होते हैं। हम तो अपने मतलब की चीज़ बस निकाल लिए ताकि हम चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर समझ लें। तो जो बात हम यहाँ पर कह रहे हैं
कि आरएनए से, ये आरएनए से जो अभी अभी आपने देखा ये आरएनए था, इस आरएनए से इजीली जो प्रोटीन हमने लिख दिया, क्या ये ऐसा प्रोसेस नहीं है? क्योंकि बीच में लॉट ऑफ एंजाइम्स लगेंगे, और ये जो लॉट ऑफ एंजाइम्स जो लगेंगे ना, तो एंजाइम्स आएंगे कहाँ पे, कहाँ से एंजाइम्स आएंगे? इसका मतलब कि आरएनए जो था, जो बीच में एंजाइम्स लगेंगे, तो जब प्रो आरएन और एक बात ये भी तय है कि प्रोटीन आरएनए से ही बनेगा, और प्रोटीन ही एंजाइम होते हैं। तो जब प्रोटीन बनेगा ही नहीं तो एंजाइम आएंगे कहाँ से? मतलब कि अगर एक सवाल आप पूछोगे पहले मुर्गी आई कि अंडा, तो पहला तो होगा भाई अंडा ही आया होगा, क्योंकि अंडा से ही मुर्गी आएगा। मतलब कि पहले प्रोटीन आया कि आरएनए? ऑफ कोर्स पहले आरएनए ही आया होगा, क्यों? आरएनए ही ने ही प्रोटीन को बनाया है। कोई डाउट? आरएनए ने ही प्रोटीन को बनाया है। तो अगर आरएनए ने ही प्रोटीन को बनाया है, अगर आरएनए ने ही प्रोटीन को बनाया है, तो पहले आरएनए आया होगा। तो आरएनए प्रोटीन बनाया कैसे? क्योंकि आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम प्रोटीन्स ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आरएनए जो है ना, ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल का तो रोल प्ले करता ही है, ये एंजाइमेटिक रोल भी प्ले करता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट हैव कैटालिटिक रोल। क्या बोलते हैं? इट हैव कैटालिटिक रोल। मतलब कि आरएनए के पास कैटालिटिक रोल भी था, आरएनए एंजाइम के रूप में भी रोल प्ले कर सकता था, और ये डिस्कवर हुआ। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम, क्योंकि राइबोजाइम जो एंजाइम है, इट इज मेड अप ऑफ आरएनए, क्योंकि वो जो एंजाइम है उसमें कैटालिटिक रोल भी है, वो किसी रिएक्शन को आगे बढ़ा भी सकता है, और उस वो प्रोटीन नहीं है बल्कि वो आरएनए है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ और अच्छे से हो गया कि आरएनए ही पहला जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ में कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकता है। दस इसलिए ये प्रूफ हो गया कि डीएनए जो है इट इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, सो आरएनए वाज, और डीएनए इवॉल्व फॉर आरएनए एज आरएनए वाज रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। और हमेशा इवोल्यूशन में सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनती हैं। ऑलराइट, इसलिए आरएनए वर्ल्ड में क्या क्या आपने पढ़ा कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। व्हाई इट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि इट वाज एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल एंड एंजाइम्स दोनों के रूप में ये रोल प्ले कर रहा था। ऑलराइट, कोई दिक्कत यहाँ तक होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, इसके आगे हम रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो रेप्लिकेशन के लिए मैं एक नया वीडियो बनाता हूँ। ऑलराइट, जब तक आप इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, आरएनए वर्ल्ड तक पूरा टॉपिक एनसीईआरटी में पढ़िए। आगे फिर शुरू करते हैं रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है।